Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Fundamental Rights, and under this chapter we are discussing right to liberty, which is one of the most important rights of the people of the country. And we have seen that this right to freedom has many rights. It gives us many rights, like right to freedom of expression, then right to freedom to assemble peacefully, then to form associations or unions, right to move freely within the territory of the country. Then we have also the right to reside and settle in any part of the India, any part of the country, and we also have the right to practice any profession or to carry on any occupation, business or trade. So these are our rights, and we have also seen that these rights are not absolute, and rights can never be absolute, and rights should never be absolute. होना भी नहीं चाहिए rights को absolute. अगर राइट्स एब्सोल्यूट हो जाएंगे तो फिर दीज राइट्स कैन नॉट बी एंजॉयड बाय ईच एंड एवरी पर्सन. इफ वी वांट दैट ईच एंड एवरी पर्सन शुड be able to enjoy the right, then there must be some restrictions. So our constitution makers have also put restrictions on these rights, and we have seen that in view of public order or morality, our rights, these rights which we have discussed, they can be restricted. But here we must understand that these restrictions should be reasonable, है ना. And there were some people in the Constituent Assembly, some members in the Constituent Assembly, who were of the opinion that too much restrictions are imposed by the Constitution on the freedom of the people, and it seems that the Constitution gives rights from one hand and takes it away from the other hand. तो इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है. So we can say that it is very much important for the common people to be aware of the intentions of the government. अगर हम पे restrictions लग रहे हैं तो we must be aware कि वो restrictions reasonable हैं या नहीं हैं. So we have discussed this. After that we have discussed our right to life and personal liberty, and under this right to life and personal liberty, which is given in article 21, आर्टिकल 21 हमें ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है, जिसके अंदर हमें बहुत सारे राइट्स मिले हैं. लाइक कभी भी हमें आर्बिट्रेरली अरेस्ट नहीं किया जा सकता है. लाइक अगर अरेस्ट करना हो तो अरेस्ट वारंट चाहिए होता है. देन अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना एकदम कंपल्सरी होता है पुलिस के लिए. जिसको भी अरेस्ट किया जाता है वो अपने लिए उसको अपने बचाव के लिए, जब उसके अगेंस्ट ट्रायल चलेगी कोर्ट में, तो अपने बचाव के लिए वो वकील, लॉयर के सर्विस को हायर कर सकता है. एंड इफ he is not financially in such a condition to afford a lawyer, then the government will provide him, है ना. तो इसके लिए public prosecutors होते हैं. We have discussed up to this, and now we will see that this right to life has a very wider meaning. It's not only that right to life and personal liberty means that no one can arrest us without any without following the law and the rules. That is important, but other than that there are many things which comes under right to life which are not given in our constitution. हमारे constitution में बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई थी, और after the implementation of the constitution what happened that controversy arose. बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुए जिसमें कि कंट्रोवर्सी आई, और फिर वो मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया, एंड देन सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड द जजमेंट थ्रू विच दिस कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ हैज़ बीन एक्सपेंडेड. जैसे कि कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उसके कारण आज के समय में राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारे राइट्स जो है वो हमारे इंक्लूड हो गए हैं. जैसे ये है राइट टू लाइफ. अब इसके अंदर हमारे कौन से राइट आ जा रहे हैं? राइट टू
livelihood. This right is not given in the constitution. Right to livelihood हमें constitution नहीं देता है, but this right we get this right through the judgment of the judiciary. Judiciary ने judgment देके ये right हमें दिया है, क्योंकि अगर हमें right to life है तो we will not be able to live a life in the absence of livelihood. We need any source of livelihood. तो ये हमारा राइट है कि लाइवलीहुड हमें मिलनी चाहिए। और ये जो मैटर आया था वो मुंबई से स्टार्ट हुआ था, जबकि हॉकर्स और वेंडर्स जो थे उनको जैसे जो they were considered as hindrance in the traffic, they were considered as hindrance in the beautification of the city। तो ये ड्राइव चला कि जो वेंडर्स और हॉकर्स हैं उनको हटा दिया जाए, उनको नहीं लगाने दिया जाए उनके जो भी वो टेम्पररी शॉप टाइप अरेंजमेंट्स लगाते हैं फुटपाथ पे। तो फिर ये मैटर जो है वो गया कोर्ट में, और तब ये मतलब एक बार में ये मैटर नहीं वो हो पाया था, कंप्लीट हो पाया था। पहले हाई कोर्ट में जो जजमेंट थी वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो बॉम्बे की थी उसके फेवर में आई, फिर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, और तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस बात को कहा कि यस, पीपल हैव राइट टू लाइवलीहुड। आप उनसे उनकी लाइवलीहुड नहीं छीन सकते। अगर आप हॉकर्स और वेंडर्स को हटा रहे हैं तो आप उनकी लाइवलीहुड छीन रहे हैं, तो ये राइट आपको नहीं दिया गया है। तो इस तरह से राइट टू लाइवलीहुड हमें मिला। इसी तरह से और भी बहुत सारे जुडिशियल जजमेंट्स हुए जिसके थ्रू हमें बहुत सारे राइट्स मिले, लाइक राइट टू शेल्टर। दिस राइट इज ऑल्सो नॉट गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू शेल्टर हमें नहीं दिया गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, बट दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल नीड्स, basic needs of the people. We cannot survive in the absence of proper shelter. तो ये राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। इसी तरह से एक और राइट है, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर कि हम सबको, अगर राइट टू लाइफ का मतलब क्या है कि हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि हमें बीमारियां ना हो, कोई भी इस तरह का, अगर हम कंटामिनेटेड वाटर अगर हम पी लेते हैं तो उस कंटामिनेटेड वाटर से हमें कई तरह के डिजीज हो सकते हैं, और ये डिजीज फैटल तक हो सकते हैं। तो फिर हमारी राइट टू लाइफ का क्या होगा? तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू लाइफ देता है तो इसका मतलब ये भी है कि हमें राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी हमें मिला हुआ है। ये जुडिशरी ने इस तरह से एक्सपैंड किया इस राइट टू लाइफ के जो कॉन्सेप्ट है उसको। तो ये हम कह सकते हैं कि जुडिशरी का भी इसमें हम साथ साथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जुडिशरी कि किस तरह से जुडिशरी जो है वो प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, किस तरह से जुडिशरी ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को वाइडन किया है। ठीक है, तो इसने फंडामेंटल राइट के स्कोप को सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी वाइड किया है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये सारे अधिकार जब हमें मिलते हैं तभी हम एक ह्यूमन लाइफ लीड कर पाते हैं, डिग्निटी के साथ जो लाइफ होती है वो लाइफ हमें मिल पाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। अब हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविजन आया है, और वो है क्या? वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है, और उसका प्रोविजन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है तो क्यों किया गया है, और वो उसके क्या हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसी राइट टू फ्रीडम के अंदर ही ये राइट हमारा है, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। इट्स नॉट अ राइट, प्रिवेंटिव डिटेंशन इट्स अ टॉपिक। ये टॉपिक है जो कि हम राइट टू फ्रीडम के अंदर ही इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारे फ्रीडम पे कर्टेलमेंट है। इट्स अ कर्टेलमेंट ऑन आवर राइट टू फ्रीडम। तो हम लोग इसको इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। सो वी आर डिस्कसिंग राइट टू फ्रीडम। ठीक है, और इसी राइट टू फ्रीडम के अंदर हमें समझना है प्रिवेंटिव
डिटेंशन के बारे में। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? तो इसमें हम क्या लिख रहे हैं कि ये इसका जो प्रोविज़न है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। और सबसे पहले इसके जो हम जिसको कहते हैं लिटरल मीनिंग, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, उससे हम अगर समझने की कोशिश करें तो उससे ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और रटने की जगह चीज़ों को समझना इज़ फार बेटर, है ना। तो प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, इन ऑर्डर टू स्टॉप समथिंग, है ना। प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए डिटेंशन करना। डिटेंशन मतलब, डिटेंशन इज वी कैन से अनदर वर्ड और इट्स सिनोनिम फॉर अरेस्ट, ठीक है। तो प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए जो अरेस्ट किया जा रहा है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। क्या रोकने के लिए, किस चीज को रोका जा रहा है? व्हाट इज प्रिवेंटेड? प्रिवेंट किया जा रहा है क्राइम, कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी होने वाली है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में जिस क्राइम की हम बात कर रहे हैं या जिस अनलॉफुल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो अनलॉफुल एक्टिविटी अभी हुई नहीं है, बट जो पुलिस अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, उसको इस बात का एप्रीहेंशन है। एप्रीहेंशन का मतलब शंका, डाउट, इस बात का वो एप्रीहेंड कर रही है, उसको ऐसा लग रहा है ना। हम जब कहते हैं ना ऐसा लगता है, तो हम एप्रीहेंड करते हैं। तो उसको ऐसा लग रहा है, जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस अथॉरिटी है, कि ऐसा कुछ होने वाला है। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है हु कैन बी engaged in any unlawful activity, and this unlawful activity can be dangerous for the security of the country, it can be dangerous for the unity of the country. तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है जिसमें कि क्राइम अभी हुआ नहीं है, बल्कि ऐसा एप्रीहेंड किया जा रहा है कि क्राइम हो सकता है, ठीक है। तो उस क्राइम को होने से रोकने के लिए, टू प्रिवेंट that crime or to prevent that unlawful activities to happen, this detention is done, ठीक है। वो अनलॉफुल एक्टिविटी हो न जाए कहीं, उसको होने से रोकना है, उसको प्रिवेंट करना है। कैसे प्रिवेंट होगा? जो करने वाले हैं उस अनलॉफुल एक्टिविटी को, अगर उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा तो नहीं होगा वो अनलॉफुल एक्टिविटी, है ना। तो इसका यही मतलब होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, कि डिटेंशन जो हम कर रहे हैं, अरेस्ट जो कर रहे हैं, वो एप्रीहेंशन पे अरेस्ट हो रहा है। उसमें ये नहीं है कि मतलब क्राइम हो चुका है। क्राइम ऐसा लगता है कि हो सकता है और इसीलिए अरेस्ट किया जा रहा है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस व्हाट हैपेंस, दैट अ पर्सन इज अरेस्टेड after he or she has reportedly committed some offense, है ना। After the committing of the offense, the person is arrested. But this is an exceptional situation in which the person is arrested without the committing of the offense. ऑफेंस अभी कमिट नहीं किया गया है, उसके पहले ही अरेस्ट कर लिया गया है। क्योंकि अगर ऑफेंस कमिट करने का हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो भी जिस पर ये अप्रीहेंड किया जा रहा है कि वो क्राइम कर सकता है, उसके अगेंस्ट एविडेंस है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जब इस तरह का अरेस्ट होता है तो इसमें सबसे पहली बात इसको कहते हैं हम प्रिवेंटिव डिटेंशन। दूसरी चीज, इसमें जो रूल्स अभी हमने जस्ट इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस ना, कि किसी को भी जब अरेस्ट करने जाते हैं तो अरेस्ट वारंट होना एकदम मस्ट होता है। अरेस्ट वारंट के बिना नहीं अरेस्ट होते हैं। फिर जो अरेस्ट करने के समय से 24 घंटे के अंदर अंदर उस अरेस्टेड पर्सन को द पुलिस हैज टू प्रेजेंट दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। तो ये सारी चीजें फॉलो नहीं होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, क्योंकि अभी तो क्राइम हुआ ही नहीं है। तो जब क्राइम नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली एफआईआर नहीं होगा। एफआईआर नहीं होगा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई रिपोर्ट तैयार नहीं हुई पुलिस की तरफ से, तो फिर मामला जो है उसमें अरेस्ट वारंट निकलेगा कहाँ से? पॉसिबल ही नहीं है ना, जब क्राइम ही नहीं हुआ है।
तो इसलिए इसमें ये कुछ भी चीज़ जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं होती है। ये सिर्फ हम यही कहेंगे कि अगर गवर्नमेंट ऐसा फील कर रही है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है या ग्रुप ऑफ पीपल है, दे कैन बी ही और सी और दे कैन बी अ थ्रेट to law and order or to the peace and security of the nation, then they can be arrested। ठीक है, तो इस तरह का जब अरेस्ट होता है तो इसमें 3 months के लिए अरेस्ट होता है। दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन इज डन फॉर 3 months। और सपोज करो कि 3 महीने के बाद उसको अगर एक्सटेंड करना हो तो फिर क्या किया जाएगा कि उसको एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने रिव्यू के लिए लाया जाएगा। एडवाइजरी बोर्ड उसको रिव्यू करेगी कि जो हुआ है अरेस्ट जिस पर्सन का हुआ, जिस रीज़न से हुआ, जिस अप्रीहेंशन पे हुआ, उसको वो पूरा रिव्यू करेगी। और अगर वो पाएगी कि उसको एक्सटेंड करना चाहिए अरेस्ट को तो फिर वो आगे एक्सटेंड हो जाएगा, अदरवाइज उसका डिटेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसके अंदर कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। अरेस्टेड पर्सन के जो राइट्स हैं वो राइट्स यहाँ पे फॉलो नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये क्या देखते हैं कि अगर देखा जाए तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या यूज़ है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन। आखिर इस तरह के प्रोविज़न को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों जगह मिली, जिसमें कि आप द पुलिस गेट्स इमेंस पावर एंड द पुलिस कैन मिसयूज इट्स पावर एज वेल, है ना। पुलिस अपने पावर को मिसयूज कर सकती है, उसके पास इमेंस पावर आ गए हैं। तो अब आखिर ऐसे प्रोविज़न को करने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये होती है कि इस तरह का जो कंडीशन है, जो प्रोविज़न है, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो क्राइम के होने का इंतज़ार नहीं किया जा रहा है। जब क्राइम हो ही जाएगा तो फिर पकड़ के क्या फ़ायदा है। क्राइम होने के पहले ही अगर कल्प्रिट जिसको माना जा रहा है, ही विल नॉट बी सेड टू बी द कल्प्रिट, बट जिसको एप्रीहेंड किया जा रहा है कि वो किसी तरह के क्राइम कर सकता है या अनलॉफुल एक्टिविटी में इंगेज हो सकता है, तो उसको पहले ही अरेस्ट कर लिया जाए ताकि वो क्राइम होने से उसको बचाया जा सके। क्राइम होने के बाद तो अरेस्ट करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, ऐसा हिंदी मूवीज़ में क्या होता है, जब सारे क्राइम हो गया होता है, सब कुछ, हीरो जो होते हैं वो मारपीट सब कर चुके होते हैं, तब लास्ट में पुलिस आती है। तो वैसे पुलिस के आने से फ़ायदा क्या है? तो ये इस पर्पस को ध्यान में रख के कि पुलिस के हाथ में कुछ स्पेशल पावर दी जानी चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ज़्यादा अच्छे से मेंटेन हो सके सोसाइटी के अंदर। बट व्हाट वी फाइंड इन एक्चुअल प्रैक्टिस, जो हमारा पिछले 70 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, वो एक्सपीरियंस यही बताता है कि इस प्रोविज़न का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। द प्रोविज़न हैज़ बीन मिसयूज्ड लार्जली बाय द गवर्नमेंट। स्पेशली अगर हम डिस्कस करें इमरजेंसी के सिचुएशन को, 1975 के जून में इमरजेंसी लगी थी इंडिया में इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे। यू हैव टू रीड ऑल दीज थिंग्स दिस अबाउट दिस इमरजेंसी इन द क्लास 12th सिलेबस में। ये आपके पूरे के पूरे बहुत ही डिटेल में पढ़ना है और तब यू विल बी बिकम मोर अवेयर, बट स्टिल यू मस्ट नो कि इमरजेंसी के टाइम में गवर्नमेंट ने इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया। नॉट यूज, इट वॉज एक्चुअली मिसयूज्ड। जो भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनको इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज़ करके उनको पकड़ लिया गया, डिटेन कर लिया गया। और इतना ही नहीं, कितने सारे लोग, स्टूडेंट्स बिल्कुल लापता हो गए जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल सका। तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो इसको हम यही कहेंगे कि इसका मिसयूज़ ज़्यादा होता है। इस तरह के जो भी प्रोविजंस होते हैं जो कि स्पेशल पावर्स दे रहे हैं पुलिस को, गवर्नमेंट को, इनका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और ये हम हमेशा कहेंगे कि ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। और फिर से वही कहेंगे कि एक हाथ से आपने हमें राइट टू लाइफ दिया, राइट टू लिबर्टी दिया, बट दूसरे हाथ से आपने उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू ले लिया।
तो इस तरह के राइट्स, इस तरह के जो प्रोविजंस हैं वो हमारी राइट्स के टोटली अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग हमको इन चीज़ों को ही समझने की ज़रूरत है। नाउ वी विल सी दैट अंडर दिस राइट टू फ्रीडम वन मोर राइट इज एडेड इन द ईयर 2009 एंड दिस इज RTE, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो राइट टू एजुकेशन है इसको 2009 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ये पार्ट बन गया और इसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या मिला है हमें, वो ये है कि 14 ईयर्स से बिलो के जितने भी बच्चे हैं दे मस्ट गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ओके, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन उनको दिए जाने की प्रोविज़न है ये। और इस तरह से ये इस राइट का देखा जाए तो बहुत ही वाइडर इम्प्लीकेशन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। In our original constitution, there is no such provision. In the original constitution, we will just now we will discuss that also. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमें मिला हुआ है और उस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर सिर्फ यही बात कही गई थी कि चाइल्ड अब्यूज़ का मतलब ये था कि जो 14 ईयर्स से बिलो बच्चे हैं दे शुड नॉट बी एंगेज्ड इन एनी हैजार्डस एक्टिविटीज़। किसी भी तरह का जो हैजार्डस है, डेंजरस है, उस तरह के काम में उनको नहीं लगाना है। तो इससे न तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट होता है और न ही एजुकेशन की ये बात करता है। ये सिर्फ ये कहता है कि हेल्थ के पर्पज से जो डेंजरस काम है उनमें बच्चों को नहीं लगाना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है राइट टू एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देना, क्योंकि इसके बाद 14 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे उनके लिए फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। नॉट ओनली गवर्नमेंट बट जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर भी RTE के अंदर एडमिशन्स होते हैं, सीट्स उनके लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है बच्चे उनके लिए सीट्स रिजर्व होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये एक हमारी कंट्री का अगर देखा जाए, अगर ये जो प्रोविज़न है वो अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है तो इससे पूरी की पूरी कंट्री बदल सकती है। जो क्योंकि हमने आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि अगर चेंज लाना है तो कहाँ से चेंज आएगा? चेंज यहाँ से आता है, दिमाग से आता है। और ये दिमाग हमारा तभी वाइडन होता है, ब्रॉडन होता है जब इसको एजुकेशन मिलता है। तो सारी जो बुराइयां हैं ना, सारी बुराइयों का जो जड़ है वो हमारे दिमाग में होता है। तो अगर हमें बुराइयों को ख़त्म करना है तो ये दिमाग में जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करनी होगी, जिसके लिए एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है। तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है और इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इम्प्लीमेंटेशन सही से होता है तो हम समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स जो कि जिनकी अगर एक साल का जो फीस देखे वो लाखों लाख का फीस होता है, अगर वो वैसे स्कूल्स में BPL बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन देखना ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, बिकॉज हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी कंट्री में जो कंडीशंस हैं वी ऑल आर अवेयर। कोई भी जब नया रूल आता है बस थोड़े ही दिन उसको फॉलो किया जाता है, उसके बाद उससे बचने के 10 रास्ते निकल आते हैं कि कैसे इस कानून से बचा जाए। तो RTE को लेकर भी बहुत सारे मतलब धांधली होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट स्टिल हम कहेंगे ये एक बहुत अच्छा कदम है। और अगर कंट्री हमारी बदलेगी, अगर सोसाइटी हमारी बदलेगी तो इन्हीं जैसे राइट्स जो हैं इनकी ही रिक्वायरमेंट है और इनके न सिर्फ ये राइट्स मेंशन किए जाए बल्कि इनका इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो इन दिस वे वी हैव कंक्लूडेड आवर राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम हमने कंक्लूड कर लिया। अब इसमें हमारा कोई भी पोर्शन जो है वो बचा नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारा राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 2 राइट हमने डिस्कस कर लिया है, ये थर्ड राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
ठीक है। तो अब ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से क्या मीन करते हैं हम? तो एज अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इस सोसाइटी में जहाँ भी जब भी एक्सप्लॉयटेशन होता है तो किसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, या कहीं पर भी, चाहे वो फैमिली के अंदर ही हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो कहीं भी, जहाँ कहीं भी एक्सप्लॉयटेशन होता है वो हमेशा जो वीकर सेक्शन होता है बस उसी पर ये होता है, उसी वीकर सेक्शन का ही एक्सप्लॉयटेशन होता है और किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शन है उनको प्रोवाइड किया जाए, उनको किस तरह से सेफगार्ड्स प्रोवाइड किया जाए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे वर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको प्रोटेक्ट करना जो है वो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, तो इसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया और हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मिलता है। इसके अंदर कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको कि हमें डिस्कस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था बेगार। बेगार कहने का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बेगार? इट्स अ हिंदी वर्ड, ठीक है। बेगार जो है ये एक हिंदी वर्ड है। इसका मतलब होता है जब किसी से काम कराया जाए और उसके बदले में उसको जितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए उससे कम रेम्यूनरेशन देना, या ऐसा भी पहले जैसे होता था कि सपोज किसी जो जमींदार होते थे वो क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े मतलब उनके पास तो बहुत पैसा होता था, तो जमींदारी के साथ साथ वो मनी लैंडिंग का भी काम करते थे। और जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे वो क्या करते थे, उनकी तो कंडीशन बहुत ख़राब होती थी, वो बहुत पुअर होते थे, तो उनको अपने डे टू डे नीड्स के लिए कई बारी वो लोन लेना पड़ता था। किससे? इन्हीं लैंडलॉर्ड से, इसी जमींदार से वो मनी लैंड करते थे। तो अब वो कुछ उधार ले लिए, एक तो उनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती है, दे आर ऑलमोस्ट इलिटरेट जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, तो वो कुछ पैसे जो उधार लिए हैं उस पर उनका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चलता जाता है, और ऐसे कंडीशन में वो आ जाते हैं कि उस एक छोटी सी रकम भी जो वो उन्होंने उधार ली उससे वो बाहर नहीं निकल पाते, वो उसी में उलझे पड़े रह जाते हैं। और जो जमींदार होता है वो बस ये कह के कि तुमने मेरा पैसा उधार लिया है, वो उससे काम कराते जाते हैं, उस पैसा की वो उधारी जो है वो चुकाता रहता है काम करके, जबकि वो अमाउंट बहुत कम होता है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हो जाता है और इनके अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाया जाता है। इस तरह की कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रिवेल करते थे बिफोर इंडिपेंडेंस टाइम को देखे, आज भी करता है बट आज बहुत सिचुएशन इम्प्रूव कर गया है। जो कंडीशन आज़ादी के पहले थी उसमें यही सब चीज़ें इस तरह की थी। अगर पुराने थोड़े मूवीज़ हम लोग देखें तो इस तरह के कई सारे सिचुएशंस हमें दिखेंगे। जैसे मदर इंडिया ही बहुत ही अच्छी मूवी है जिसमें कि हमारे किसानों की ही प्रॉब्लम्स को दिखाई गई। आजकल तो मूवीज़ बनती ही नहीं है जो कि रियल पॉवर्टी को दिखाए। रियल पॉवर्टी से तो कोई मतलब नहीं है आज के समय में। तो अगर उस तरह की जो पुरानी मूवीज़ हैं उसको देखने का मौका मिले तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें रियल प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है। तो किस तरह से एक किसान एक छोटा सा रकम उधार लेता है और वो उसमें किस तरह से वो फंस के रह जाता है, उसकी लाइफ क्या से क्या हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। ये होती है पॉवर्टी। और इसका किस तरह से मिसयूज़ किया जाता है, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं किस तरह से मिसयूज़ करते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री की बहुत बुरी तरह की प्रॉब्लम थी। और उसी में बेगार जो है ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही ख़राब, जिसको हम कहा जाए बहुत गंदा सिस्टम जो था वो हमारी रूरल सोसाइटी में, रूरल के अर्बन सोसाइटीज़ में भी हर जगह ये प्रिवेल करता था। तो इसको इसी के लिए एक और टर्म है जो इंग्लिश में टर्म है, वो है बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर भी इसी को कहते हैं, फोर्स्ड लेबर भी इसी को कहते हैं।
ये जो बेगार है, बॉन्डेड लेबर है, फोर्स लेबर है, इन सबको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, हटा दिया है। अब हमारे यहाँ बेगार नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इसको एबॉलिश कर दिया गया है। हालांकि अभी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, बट डिग्री बहुत कम हो गई है, एक्सटेंट बहुत कम हो गया है। तो फिर आज के लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।